Hello everyone, welcome back to this channel. Very good morning to all of you. This is me Swati Jaiswal, and here today I am going to explain you your moral science first chapter. The name of the chapter is Raju and the Tree. Okay, the moral values of this chapter is helpfulness. The whole chapter is based on the helping nature. Okay, before I started, I want to ask you some questions. Have you ever helped anyone without expecting anything in return? क्या आपने कभी किसी की हेल्प की है बिना रिटर्न में कुछ एक्सपेक्ट करे? If yes, it means you are a helpful person. Or has anyone ever sacrificed anything for you, or ever you sacrificed your things to for anyone? क्या आपने कभी कुछ सेक्रीफाइस किया है या किसी ने आपके लिए कुछ सेक्रीफाइस किया है? और अगर किया है, it means you are a very luckiest person. We live in this society, okay? And here lots of people who are very greedy and selfish. So we need some helpful nature or a generous persons or a gentleman who always ready to help with the others without expecting in returns, okay? So हमें हमेशा क्या करना चाहिए? हमें हमेशा दूसरों की हेल्प करना चाहिए बिना ये सोचे कि वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे या हमें उसके बदले में क्या मिलेगा. We just do that work. As well said, that do good and forget. यानी नेकी करो और दरिया में डालो. ठीक है? So the phrase is very well fitted here. Now I started this chapter. So let's see. A little boy whose name is Raju and the apple tree who is very generous and kind. Okay, and ready to help Raju. Now see. Once there was a big tree just outside a village. A boy named Raju used to come and sit under that tree. Raju would sing songs and study his books under that tree. The tree was very fond of listening to Raju's songs, and sometimes the songs he sang seemed happy to the tree, but sometimes his voice was full of sadness. In the first paragraph, there was a big tree just outside a village. यानी एक बहुत बड़ा सा एप्पल ट्री होता है, ठीक है, जो कि गांव के किनारे पर होता है. वो वहाँ पर जा कर के उस पेड़ के नीचे ही गाना भी गाता है और अपनी बुक्स को निकाल करके पढ़ता भी है. ही स्टडी हिज बुक्स. ओके, सो नाउ द ट्री वॉज फाउंड ऑफ लिसनिंग राजूज म्यूजिक्स और सॉन्ग्स, समटाइम्स वेरी हैप्पी एंड समटाइम्स ही सीम्ड वेरी सैड. यानी जो पेड़ रहता है वो उसे बहुत मज़ा आता है. वो राजू का जब सॉन्ग सुनता है तो उसे बहुत अच्छा लगता है. लेकिन वो क्या देखता है कि कभी कभी जब राजू गाना गाता है तो राजू कैसा होता है, बहुत ही खुश होता है, और कभी कभी वो बहुत ही दुखी साउंड करता है, यानी बहुत ही सैड साउंड करता है. ओके, नाउ इन द सेकेंड पैराग्राफ, आफ्टर सम डेज राजू बिकेम सो सैड दैट ही स्टॉप्ड सिंगिंग सॉन्ग्स. द ट्री कुड सी द सैडनेस ऑन द राजूज फेस or the boy's face, okay, and asked him the cause of his sadness. कुछ दिनों के बाद राजू became so sad. राजू जो था वो बहुत ही दुखी हो गया था, and he stopped singing. और उसने अपने गाना गाना की जो कला थी उसको उसने रोक दिया था. यानी वो जो सॉन्ग गाता था वो क्या कर दिया था, उसने स्टॉप कर दिया था. अब उसने अपना गाना गाना तो बंद कर दिया था. The tree could see the sadness on the boy's face and asked him the cause of this sadness. तो जो पेड़ होता है वो उसके चेहरे पे इतनी सैडनेस देख करके उससे पूछ लेता है कि क्या हुआ तुम्हें, तुम्हारे दुख इतने सैड होने का, इतने दुखी होने का क्या कारण है. cause it means कारण. okay, so now here Raju replied, I need to buy a book to study but I have no money. How will I do my homework now? राजू कहता है मुझे तो एक बुक की ज़रूरत है पढ़ने के लिए, बट आई हैव नो मनी, लेकिन मेरे पास तो पैसे ही नहीं हैं. हाउ विल आई डू माई होमवर्क नाउ? अब मैं अपना होमवर्क कैसे करूँगा? सो द ट्री रिप्लाइड. द ट्री फेल्ट सॉरी फॉर राजू एंड सेड, यू शेक माई ब्रांचेस हार्ड and collect the fruits which fall from my branches. Then go to the market and sell all those fruits and buy books with that money. तो ट्री जो होता है एज एन सोल्यूशन ही जस्ट गिव द सजेशन और द एडवाइज्ड. ओके, तो उसे बहुत दुख हुआ जब राजू ने उसे बताया कि उसके पास पैसे नहीं हैं, वो कैसे बुक्स खरीदेगा और कैसे अपना होमवर्क करेगा. देन ही जस्ट द ट्री
गेव द सॉल्यूशन कि तुम मेरे पेड़ की ब्रांच को क्या करो, शेक करो, हिलाओ, उससे जो फ्रूट्स गिरेंगे उसे कलेक्ट करो, और उसे कलेक्ट करने के बाद क्या करो, तुम ले जा करके उसे मार्केट में सेल कर दो, बेच दो। सेल करना यानी बेच देना, ओके। एंड फिर उससे जो पैसे मिलेंगे उनसे तुम अपनी बुक्स खरीद लो। सो हेयर इट इज़ द बेस्ट सोल्यूशन आई थिंक। नाउ द बॉय डिड एज द ट्री एडवाइज्ड। बॉय ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा उससे ट्री ने कहा। सून ही स्टार्टेड सिंगिंग एंड स्टडिंग एज बिफोर। तो जल्दी वो जैसे पहले गाना गाता था, पढ़ता था, बिल्कुल वैसे ही वो करने लगा। एंड द ट्री वॉज हैप्पी टू सी द राजू लुक इंटरेस्ट एंड इन हिज स्टडी। तो जो पेड़ था वो बहुत ही खुश हो जाता कि अब राजू फिर से पहले की तरह क्या हो गया है, बहुत ही खुश हो गया है। उसे अब अच्छा लगने लगा था क्योंकि वो अब पढ़ने भी लगा था उसी पेड़ के नीचे बैठ के। ओके, सो टर्न ओवर योर पेज, सी हियर। Time went on like this, and one day again Raju looked sad. The tree asked him the cause of his sadness. Raju told the tree that he could not pay his school fee because he had no money. Teacher would strike off his name from the school if he did not pay the fee. The tree was again sorry to hear Raju's sad story. The tree asked Raju not to worry. It told him to shake its branches and collect the leaves. These will fetch you the required amount to pay your school fee. The fee further advised, don't stop your studies at any cost. अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, जब उसको पहले तो उसको पैसे की ज़रूरत थी, किस लिए, बुक्स खरीदने के लिए। ऑन द सेकेंड चांस उसे फिर पैसे की ज़रूरत पड़ी, किस लिए, स्कूल फीस भरने के लिए, ठीक है। अब देखिए, जब उसे पहले ज़रूरत पड़ी थी उसने क्या किया था, उसके फ्रूट्स सेल कर दिए थे। नाउ हियर टाइम वेंट ऑन लाइक दिस। तो टाइम बिल्कुल ऐसे ही बीतता रहा। फिर एक दिन उसने देखा कि राजू फिर से सैड हो गया। अब इस बार क्यों सैड था, तो ट्री ने उससे फिर से पूछा, वाई यू आर सैड। तो ट्री को राजू ने क्या रिप्लाई दिया, राजू टोल्ड द ट्री दैट he could not pay his school fees, कि अब वो अपने स्कूल की फीस नहीं पे कर पा रहा है। So what he can do, अब वो क्या कर सकता है। तो पेड़ ने उसे फिर सजेस्ट किया, और उससे पहले राजू ने उसे बताया कि टीचर, क्योंकि वो अपनी फीस नहीं पे कर पा रहा है, इसलिए टीचर ने उसका स्कूल से नाम उसे स्कूल से निकाल दिया, और उसका नाम भी स्कूल से वो क्या कर देंगे, कट कर देंगे, ठीक है, जिसकी वजह से वो स्कूल में पढ़ ही नहीं पाएगा। सो अगेन सॉरी टू हियर राजू सैड स्टोरी। द ट्री वॉज वेरी सैड। ट्री जो था वो फिर से बहुत दुखी हो गया था राजू की ऐसी स्टोरी सुन करके। तो राजू से ट्री जो था वो क्या बोलता है कि तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, तुम्हें क्या करना है, मेरी ब्रांचेस को शेक करना है, ठीक है। एंड आफ्टर दैट लीव्स, जो लीव्स इसमें से फॉल डाउन होंगी उन्हें तुम्हें क्या करना है, कलेक्ट करना है। एंड दीज विल फेच यू द रिक्वायर्ड अमाउंट टू पे योर स्कूल फी। और इन्हें तुम कलेक्ट करके जब ले जाओगे, फिर से वही सेल करोगे, तो तुम्हें क्या होगा, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे, तुम उनसे अपनी फीस भर सकते हो। द ट्री फर्दर एडवाइज्ड, और उसने फिर ये एडवाइस किया दैट डोंट स्टॉप योर स्टडीज़ एट एनी कॉस्ट, कि तुम्हें अपनी स्टडी को बिल्कुल भी नहीं रोकना है, किसी भी कीमत पे नहीं बंद करना है, ओके। सो नाउ हियर in the third paragraph, see this. Time passed by and Raju continued to visit the tree regularly. He sang joyously as before. The tree also enjoyed his presence very much. अब जब उसने अपनी स्कूल की फीस भी पे कर ली थी तो राजू बहुत खुश हो गया था। ऐसे ही समय बीतता गया, वो फिर से वहाँ पे उस ट्री के पास रेगुलर आता और बहुत ही खुशी से, जॉयसली इट मीन्स वेरी हैप्पी, एक्सट्रीमली हैप्पी, वो बहुत ही खुशी से वहाँ पर गाना गाता था। और अब जो ट्री था वो उसको भी बहुत अच्छा लगता था क्योंकि राजू उसके पास अब आता था डेली। सो नाउ इट वॉज द मंथ व्हेन फॉर्म्स for the final exams were being filled, and Raju had prepared for the examination but was again in a very sad mood as the last date of submitting the forms had arrived and he had no money to pay the examination fee. Again the same problem. Raju अब क्या था यहाँ पे, it was the month when
फॉर्म्स फॉर द फाइनल एग्जाम्स वर बीइंग फिल्ड, यानी अब कई दिन बीत गए, अब क्या हो गया, अब फॉर्म फिल करने की डेट आ गई। कौन से फॉर्म? एग्जामिनेशन फॉर्म। अब एग्जामिनेशन फॉर्म, आपको एग्ज़ाम देने से पहले एग्जामिनेशन फॉर्म भी तो फिल करना होता है, तो उसके लिए भी तो पैसे की ज़रूरत होगी। देन ही वॉज अगेन सैड, तो वो फिर से दुखी हो गया, क्योंकि इस टाइम भी उसके पास पैसे नहीं थे। वो एग्जामिनेशन फ़ीस कैसे फिल करता, इसलिए अब वो फिर से सैड हो गया था। बट नाउ द ट्री वॉज सो मच अटैच्ड टू राजू that from his silence alone and it could understand that something was troubling him. अब इस बार राजू ने ट्री को कुछ नहीं बताया, वो एकदम साइलेंट था, लेकिन क्योंकि ट्री राजू से इतना अटैच्ड हो गया था, इसलिए वो उसके साइलेंस को भी क्या कर पा रहा था, रीड कर पा रहा था, अंडरस्टैंड कर पा रहा था, समझ पा रहा था। सो वो समझ गया कि हो सकता है कि राजू इस बार भी परेशानी में है। ट्रबलिंग इट मीन्स अ difficult situation or a problems. Okay, the tree asked Raju, what's the matter, why you are not singing songs? तो ट्री उससे पूछता है कि अब क्या हुआ, तुम अब क्यों नहीं सिंगिंग कर रहे हो। Raju did not want to trouble the tree any further, so he kept quiet. But Raju's silence could not stop the tree from guessing that Raju's worry was linked to money. So it asked him to cheer up and saying, as long as I am alive, my friend, you need not worry. Go, break my branches and sell them in the market. It will fetch you the required amount to fill up and submit your examination form. The examinations came and the Raju did very well. So now here, अब राजू जो था वो बिल्कुल भी पेड़ को फिर से परेशानी में नहीं डालना चाहता था कि आगे उसे और भी कोई परेशानी आए और वो फिर से जाए ट्री को बताए, तो इसलिए वो इस बार क्या हो गया था, सो ही केप्ट क्वाइट, इस बार वो एकदम शांत हो गया था। बट राजू के साइलेंस को भी क्या कर लिया था, उस पेड़ ने गेस कर लिया था, उस ट्री ने बहुत अच्छे से गेस कर लिया था दैट वाज द प्रॉब्लम एंड इट इज़ लिंक्ड टू मनी, यानी ये भी प्रॉब्लम उसकी पैसे से ही रिलेटेड है। ओके, सो उसने क्या किया, उसने उसको तुरंत कंसोल किया, ठीक है, और उसने क्या कहा एज इन कंसोलेशन, उसने कहा एज लॉन्ग एज आई एम अलाइव माई फ्रेंड, यानी जब तक मैं हूँ तब तक तुम्हें बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। गो एंड ब्रेक माई ब्रांचेस, तुम्हें क्या करना है, मेरे ब्रांचेस को तोड़ना है, ब्रेक करना है। ओके, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू सेल इट इन द मार्केट, और इन्हें कहाँ ले जा करके सेल करना होगा, मार्केट में। ओके, सेल देम एंड इट विल fetch you the required amount, और ये तुम्हारे जितने पैसे की तुम्हें ज़रूरत है ये उसे भर देंगे। एंड सबमिट योर एग्जामिनेशन फॉर्म, और तुम्हें जाकर के अपना एग्जामिनेशन फॉर्म को सबमिट कर देना है। ओके, सो राजू ने बिल्कुल वैसा ही किया, जैसे ही उसका एग्जामिनेशन पास आए तो उसने बिल्कुल यही काम किया। वन डे ही केम बैक टू द सेम प्लेस एंड सैट बाय द फ्रूटलेस, लीफलेस एंड ब्रांचलेस ट्री। एक दिन राजू फिर से उस पेड़ के पास आया, बट इस बार पेड़ की कंडीशन क्या थी, उस ट्री की कंडीशन, इट वॉज फ्रूटलेस, ओके, लीफलेस एंड ब्रांचलेस। अब उस ट्री पे ना तो कोई फ्रूट्स थे, ना ही उसमें लीव्स थी, और ना ही उसके ब्रांचेस बचे हुए थे। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, ट्री इज विदाउट लीव्स और विदाउट फ्रूट, बट द ब्रांचेस आर हियर, ओके, बट हियर विदाउट एनी ब्रांचेस। अब ट्री की कंडीशन कैसी हो गई थी, जिसमें फ्रूट्स भी नहीं थे, लीव्स भी नहीं थे और ब्रांचेस भी नहीं थे। ही वॉज नॉट लुकिंग हैप्पी, लेकिन फिर भी वो बिल्कुल भी खुश नहीं दिख रहा था। कौन? राजू। ओके, द ट्री आस्क्ड हिम, तो राजू से ट्री ने फिर पूछा, वाई यू आर नॉट हैप्पी एंड वाई आर यू नॉट सिंगिंग टुडे, यू हैव डन वेल इन योर एग्जाम्स, डोंट वरी, यू विल बी सक्सेसफुल। तो वो उसको कहता है कि तुम अब क्यों दुखी दिख रहे हो, तुम गाना भी नहीं गा रहे हो आज, एंड यू आर डन इन योर एग्जाम्स, यू डन वेल, तुमने जबकि एग्जाम में बहुत अच्छा किया है, सो डोंट वरी, यू विल बी सक्सेसफुल, तुम ज़रूर कामयाब होगे। ओके, सक्सेसफुल। बट द बॉय डिड नॉट अटर अ सिंगल वर्ड, लेकिन इस बार भी उस बॉय ने बिल्कुल भी एक शब्द भी नहीं बोला। अटर इट मीन्स टू से समथिंग, ओके, अ सिंगल वर्ड इट मीन्स एक शब्द भी नहीं। नाउ
When the tree asked him again, the boy broke the silence. जब ट्री ने उससे फिर से पूछा तो जो लड़का था उसने अपने साइलेंस को तोड़ा और उसने बोला, मतलब उसने अपनी चुप्पी को तोड़ा और फिर उसने रिप्लाई दिया. एंड व्हाट ही रिप्लाइड, I want to go across the river to find work there, but I don't know how to sail to the other bank. I have no boat nor do I know how to swim. The tree immediately said, cut my stem and make a boat to sail across the river. Go and find a job there. This is the last thing which I can give you. Now only my roots are left, which are beneath the ground. Raju made a boat out of the stem of the tree and sailed across the river. So now here, अब जबकि उसने जब अपनी चुप्पी तोड़ी तो उसने क्या बताया, उसने ये बताया कि अब उसे क्या करना है, एक रिवर को क्रॉस करना है, उसे काम ढूंढने जाना है जो कि नदी के पार है. बट ही डजंट नो हाउ टू सेल द अदर बैंक, यानी उसे बिल्कुल भी नहीं आता था कि अब वो कैसे उस नदी को पार करेगा. ओके, हियर द मीनिंग इज बैंक, इट मीन्स द रिवर बैंक. ओके, आई हैव नो बोट, वो कहता है मेरे पास बोट भी नहीं है, नॉट डू आई नो हाउ टू स्विम, और ना ही मैं जानता हूँ तैरना. सो द ट्री रिप्लाइड अगेन, वो तुरंत, इमीडिएटली इट मीन्स टू बी क्विक, वो तुरंत रिप्लाई देता है, कट माई स्टेम, कि तुम मेरे स्टेम्स काट सकते हो, उससे बोट बना सकते हो और फिर उसे सेल करो और निकल जाओ. सेल इट मीन्स बोट जो चलाते हैं, ठीक है, उसे बोलते हैं सेल करना. तो तुम क्या कर सकते हो, तुम इससे बोट बना करके और नदी पार कर सकते हो. एंड देन यू कैन फाइंड योर जॉब, फिर तुम्हें तो तुम्हारी जॉब भी मिल जाएगी. ओके, लेकिन ट्री इस बार क्या एक वर्ड और मेंशन करता है, दैट दिस इज़ द लास्ट थिंग विच आई कैन गिव यू, कि ये ही लास्ट थिंग है जो मैं तुम्हें दे सकता हूँ, क्योंकि इसके बाद तो मेरे पास सिर्फ रूट्स बचेंगी जो कि कहाँ है, ग्राउंड के नीचे, ग्राउंड के अंदर. ओके, बीनीथ. सो नाउ हियर राजू मेड अ बोट आउट ऑफ द स्टेम. राजू जो था उसने उनकी जो स्टम, पेड़ के जो तने को काटा था, उससे उसने बोट बनाया. एंड ही सेल्ड अक्रॉस द रिवर, और उसने नदी पार कर ली. वेदर ही गॉट द जॉब और नॉट, फिर चाहे उसे जॉब मिले या ना मिले, बट ही डिड इट. द ट्री डिड नॉट नो बिकॉज इट हैड डन इट्स द लास्ट बिट फॉर द राजू एंड विश्ड दैट द बॉय हैप्पी thereafter. यानी पेड़ को पता नहीं था कि अब उसे जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, यानी मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती है, बट स्टिल उसने क्या किया, उसने जो लास्ट थिंग थी उसके पास वो भी उसने दे दी. ओके, एंड फॉर राजू, उसने राजू के लिए अपनी लास्ट थिंग भी दे दी, और उसने फिर यही विश किया कि वो जहाँ भी रहे खुश रहे. ओके, सो दिस इज दिस स्टोरी. नाउ इट इज़ ओवर. Hope you all understand about this story. This is the very beautiful story, but here only one person who is very greedy and the tree who is very helpful. Now see the exercise of this page. Describe the tree and Raju with the help of the words given in the box and write them in the given space. Here, see this, four lines are here, the two pictures also. One is tree and the second one is Raju. You have to describe it. Okay, आपको इसे describe करना है. Words, as you can see the yellow catchy line. Here are the words. ये आपके क्लू बॉक्स में कुछ वर्ड्स हैं, इन्हें आपको फिल करना है उस कैरेक्टर की क्वालिटीज के अकॉर्डिंग. ओके, सो द ट्री यू हैव टू फिल, इट इज़ वेरी हेल्पफुल, generous, sacrificial, or a guardian also. Okay, now Raju is a very needy person, sad person, and student or ambitious. Okay, question answer in the next session we will do the question answer. Okay, thank you very much for watching this video.